यू सो मच श्री रघुवेंद्र कुमार सिंह जी। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री चंद्रमौली शुक्ला MD MPIDC से कि कृपा करके श्री गोविंद भाई ढोलकिया अध्यक्ष SRK ग्रुप का स्वागत किया जाए। नाउ वी रिक्वेस्ट श्री हेतुल मेहता अध्यक्ष CII दक्षिण गुजरात जोनल काउंसिल एंड निदेशक प्रवीण लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत किया जा रहा है। We also have over the side श्री निखिल मद्रासी अध्यक्ष साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनका स्वागत किया गया। Now we request प्रमोद चौधरी जी का स्वागत किया जाए कृपा करके। आप सभी को का शुक्रिया, एक बार कृपा करके आज के इस कार्यक्रम के लिए शानदार सी तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ एक ऐसे विजनरी इंडस्ट्री लीडर को, श्री हेतुल भाई मेहता जी, प्रेसिडेंट CII साउथ गुजरात, जिन्होंने लोकल इंडस्ट्री और बिजनेस इकोसिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। इनके लीडरशिप में साउथ गुजरात के व्यापार की रफ्तार और सस्टेनेबिलिटी दोनों में तेजी हुई है। हम सभी कृपा करके शानदार सी तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री हेतुल भाई मेहता जी का। Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Mr. Ravindra Kumar Singh IAS, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion and MSME Government of Madhya Pradesh, Mr. Govind Dholakia, Founder and Chairman, Emirates SRK Group and Member of Parliament Rajya Sabha, dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen. We welcome you all. It is indeed an honor and privilege to be a part of this important session with the government of Madhya Pradesh, focusing on investment opportunities in one of India's fastest growing states. We are deeply grateful to the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, for taking the time to visit Surat and engage directly with our industry leaders. This reflects the state's strong intent to forge meaningful partnerships with business community of Gujarat. As we all know, Surat is known for its entrepreneur spirit and excellence in textiles, diamonds, engineering, and chemicals, resonates well with the growth aspirations of Madhya Pradesh. We believe that with its proactive governance, robust infrastructure, and investor-friendly policies, Madhya Pradesh offers immense potential for companies from Surat to explore expansion partnerships and new projects. The presence of Honorable Chief Minister and his whole team here today presents an invaluable opportunity for our members to gain first-hand insights into emerging opportunities across sectors, be it textiles, food processing, pharmaceuticals, renewable energy, logistics, or industrial parks. CII has been always closely working with Government of Madhya Pradesh across various platforms, and we are committed to strengthening this collaboration through actionable outcomes. I am very confident that today's session will pave new ideas, strategic investments, and long-term partnerships between Gujarat's dynamic industries, and especially for Surat and Madhya Pradesh fast transforming economic landscape. With that, I once again welcome you, all of you, and look forward to an enriching interaction ahead. Thank you very much. Happy investment. Thank you. थैंक यू सो मच टू हेतुल मेहता जी। अब आप सभी को इसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी को एक निगाहें स्क्रीन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अब एक शानदार सा एवी जो आपको मध्य प्रदेश के औद्योगिक इको। When you find infinite possibilities aligned in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India.
where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे वरिष्ठ प्रशासक को जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई विकास की रीढ़ बन चुका है। श्री रघुवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश सरकार। आपके कुशल मार्गदर्शक ने प्रदेश में एमपी राइस, जीआईएस 2025 जैसे आयोजन के जरिए नए निवेश रोजगार को दिशा दी है। स्वागत करते हैं श्री रघुवेंद्र कुमार सिंह जी का। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव साहब, कार्यक्रम में उपस्थित श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, अध्यक्ष एसआरके ग्रुप, श्री जिगिस भाई मेहता जी, एमडी टोरेंट पावर, श्री हेतुल मेहता जी, अध्यक्ष सीआईआई साउथ गुजरात जोन, श्री चिंतन ठक्कर जी, ग्रुप प्रेसिडेंट विलिसमन वर्ल्ड, श्री राम प्रकाश बेरिया जी, फाउंडर मिलेनियम बेबी केयर एंड केयर फिट इंडस्ट्रीज, श्री निखिल मद्रासी जी, श्री प्रमोद चौधरी जी और एसीजेड कमिश्नर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सभी का देश के सबसे खूबसूरत शहर में सूरत में स्वागत, और हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज ये मौका हमें यहाँ मिला है। मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको बहुत ही संक्षेप में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, और आप सभी के हमें कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ये प्रेजेंटेशन की पूरी कॉपी और साथ में पॉलिसी कंपेंडियम ये मान ले गोविंद सिंह जी, गोविंद भैया को ना, ढोलकिया जी, गोविंद काका, जोरदार अभिनंदन करे का। आज ही इसी मंच पर मौजूद हमारे बीच जिगिस भाई मेहता जी, चिंतन ठाकुर जी, राम प्रकाश बेरिया जी, हेतुल मेहता जी, निखिल मद्रासी जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, प्रमोद कुमार चौधरी जी हमारे बीच प्रतिभा ग्रुप से हैं, और इस अवसर पर मौजूद आप सबको नमस्कार करता हूं। तीन 300 साल का तो इतिहास है, उससे पुराना तो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ता है। भगवान ने भले कंस को मार दिया है, लेकिन द्वारका बसाने के बाद जो भगवान कृष्ण का जीवन दिखा वो अलग प्रकार से दिखा। बिना गुजरात किसी का उद्धार नहीं, ये पक्का है। परमात्मा की दया है। लोग समझते हैं कि गुजरे हुए कल को गुजरा बोला जाए, लेकिन स्वर्णिम अध्याय लिखते हुए गुजरता हुआ पल जाए तो गुजरात आना पड़ेगा, ये और कहीं नहीं जा सकता। पल प्रतिपल आनंद, सभी प्रकार के कामों की सिद्ध हस्तता, आनंद उमंग में जीवन और व्यक्तिगत जीवन बड़ी से बड़ी, वैसे तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन धन को पचाना भी गुजरात से सीखो और कोई नहीं सीख सकता। ये तो धन के बड़ी मुश्किल है, वो पचाना बड़ा कठिन जाता है। इतनी सादगी सरलता से बड़े उद्योगपति भी जिस ढंग से गुजरात के लोग जीवन जीते हैं, ये सच्चे अर्थ में हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा के बलबूते पे जीते, जिसके कारण से दुनिया भारत को बहुत सम्मान के साथ देखती है, आदर के साथ देखती है, एहसास कराती है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी स्वनाम धन्य अपने अपने क्षेत्र की सिद्धहस्त उद्योगपति
बड़ी उद्यमीशीलता की आपकी सबकी पहचान है। आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। ढोलकिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उसी बात को बुलाता हूँ कि ये परमात्मा सबको अपने अपने मौके देता, उनकी अपनी प्रतिभा को निखारने का, उनके हाथ से कोई यश देने का। और ये भी बात सही कि मानव लोक में हमारा जीवन अगर आया तो हमारे हाथ में नहीं है हमारा जीवन, ये जीवन परमात्मा ने लिख के दिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन ये बात भी सही है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि भी हमको मिली है और मनुष्य योनि में से और भाग्यशाली है कि भारत में जन्म मिला और भाग्यशाली के गुजरात में हमको काम करने का मौका मिला। इससे बढ़िया क्या बात है सर। ये तो परमात्मा ने विशेष लीला लिखी है। जिनको नहीं मानना उनको 2-3-4 उदाहरण ही पर्याप्त है। भारत को अगर आजादी मिली है तो महात्मा गांधी जी का योगदान कोई भूल सकता है क्या? ये भी तो गुजरात की हमारी अपनी उस प्रतिभा की, और वो भी वहां से, उस साउथ अफ्रीका से जहाँ की हालत क्या थी। और देखिए गुजरात के सूरत से तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश पर मंथन का ये कार्यक्रम है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंची है और निवेश की बहार जिसे कह सकते हैं इस कार्यक्रम में देखी जा सकती है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में और विकास के कार्य करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी आज का ये जो समिट है, ये जो मंथन है वो काफी अहम माना जा रहा है। गुजरात के सूरत से तस्वीरें हैं जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में और भी जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता है वो भी पहुंचे हैं और मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से निवेश को मध्य प्रदेश में लाने के लिए बढ़ावा दिया जाए। उद्योगपतियों से ये 1-to-1 चर्चा यहाँ पर हो रही है और निवेश पर मंथन का ये पूरा कार्यक्रम है जो आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार किस तरीके से अब विकास की नई दिशा देती है मध्य प्रदेश वासियों को, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए उद्योगपतियों से 1-to-1 ये चर्चा हो रही है, 1-to-1 ये कार्यक्रम हो रहा है। जगीश भाई मेहता जी, चिंतन ठाकुर जी, राम प्रकाश बैरिया जी, अतुल मेहता जी, निखिल मद्रासी जी, हमारे पीएम, और वो भी वहां से, उस साउथ अफ्रीका से जहां की हालत क्या थे। आज भी केवल तुलना कर लें गुजरात और अफ्रीका, मतलब मध्य भारत और अफ्रीका की, कहा हमको महात्मा गांधी मिले तो चुन चुन के एक भी अंग्रेज नहीं बचा भारत में। 47 में ऐसा साफ कर दिया मैदान, सारे इंग्लैंड भेज दिए। और दुर्भाग्य से अफ्रीका में महात्मा गांधी जैसा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, तो वहां बच गए। तो बेचारे मूल अफ्रीका के लोग, अभी उनकी क्या हालत है बोलने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल है, मैं भी सरकारी पद पे हूं तो संभल के बोलना पड़ता है, थोड़ा संकट हो जाता लेकिन ये हमारे समझने की बात तो है ही। और उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से 600 से ज्यादा रियासतों का वो अंग्रेज का एक, जो भी उनकी देश की दृष्टि से वो ठीक कर रहे थे, उनने तो माना था कि हमने देश एक बना दिया। अब ये भगवान ने ही बता दिया उनको कि तुमने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, दुनिया ने देख लिया, ये हमारे सबके सामने उदाहरण बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत सारी विशेषताएं थी, उसमें से उनकी एक विशेषता यही थी कि देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ा चुनौती का क्षेत्र था, सभी देश के अलग अलग रियासतों को विलीनीकरण करते हुए एक छतरी के नीचे लाना और उनकी विविधता वाली कठिनाइयों के बीच भी, और 2-4 ने उंगली टेढ़ी करने का मौका भी दिया तो टेढ़ी करके सीधा करने का काम भी गुजरात ने किया है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और परमात्मा की दया है, माननीय मोदी जी मिले, जोरदार अभिनंदन करो जिन्हें अपने लिए कहा 55 साल की वो गलतियां, 55, 60, 65 साल तक इस भारत की गिनती उन 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी वाले देश में थी। और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप खोल के देख लें,
भारत की 1947 में विश्व के सभी देशों में गिनती कहाँ थी, तो मालूम पड़े कि 15 में गिनती थी। और क्या करा हमने पता नहीं, 47 से लेके 14 तक, 13 की रात तक, जब तक 13 गया 14 आया तब तक गिनती देखो देश की। तो अभी कभी सोचो तो हुआ क्या है, हम 11 नंबर पे थे, तो इतने साल गुजर गए लेकिन कहाँ टिके थे, करा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो करा कि जो था वो भी चला गया, तो देश का सोना गिरवे रख करके देश की इज्जत बचाने का काम पर फॉरेन करेंसी पूरी समाप्त हो गई। कितना खराब समय था। चंद्रशेखर या बीपी सिंह जी या नरसिम्हा राव जी तक हमारे अपने इस कुशलता के साथ सभी व्यवसायों को संभालते चलाते हुए देश की आजादी के साथ जो देश आजाद हुए उस पर निगाह डालो तो वो आज भी आदर्श है। इजराइल 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ से भी कम आबादी का, कोई 70 बताए, कोई 80 बताए, जितने लाख भगवान जाने, लेकिन अकेला सब पे भारी, ये देखता दुनिया, ये सबके सामने उदाहरण है। अकेला इजराइल ये उदाहरण है, उसी प्रकार से बाकी देश भी है। लेकिन हाँ, हमें गर्व है, अब मोदी जी हमारे साथ है तो हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं। वो 2 से तीसरा हमारा देश है, जो अपने देश के अंदर हजारों साल, लाखों साल से सोने की चिड़िया की हमारी पहचान थी। यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था तो हमेशा से बहुत समृद्ध रही। धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन धन के लिए धन के चौकीदार भी वैसा चाहिए, व्यवस्थाओं को संभालने वाला भी चाहिए, नहीं तो धन आफत बन जाता है। 1000 साल की गुलामी में लंबा समय इसी बात के लिए गया कि धन कमाने के लिए भारत के लोगों ने कभी अपनी क्षमता योग्यता में कमी नहीं रहने दी, लेकिन देश की सीमाओं पे खड़ी सेनाओं की कमजोरी के कारण से देश के अंदर जो हालात बने कि सोमनाथ से शुरू हुई कहानी तो 47 तक आ गई। 1000 साल तक कितना खराब समय गया। मैं इसलिए गुजरात को धन्यवाद देता हूं कि पहले ज्योतिर्लिंग का भी झंडा सनातन संस्कृति के लिए लहराने का मौका कहीं दिया तो गुजरात की धरती से आया। ये हमारे सौभाग्य की बात, और ये गुजरात की देन है कि जब सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग का झंडा लहराया, गोपाल कृष्ण का मंदिर में आनंद आया, तो आज राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और महाकाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बदलता दौर है, कितना आनंद आया, क्या फर्क है दोनों में। राम जी का भी आनंद आया और महाकाल जी का भी आनंद आया। महाकाल का महालोक हो या आप तो बनारस की गलियां पहचान में नहीं आती, ये भी तो गुजरात की देन है। बाबा विश्वनाथ का धाम कितना आनंद में आया। मैं अभी गया था 2-4 दिन पहले ही, मेरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी के साथ ही हुई थी, और ऐसे ही बातचीत निकली तो हमने कहा पहले कितनी फ्लाइट आती थी बनारस, उन्होंने कहा 18, अब कितनी आती है, बोले 98। ये बदलता है, 10 साल में कितना बदल जाता है। पूरा बनारस बदल गया, काशी बदल गया, और केवल काशी नहीं, गृह मंत्री क्या होते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखा या अमित शाह जी से सीखा कि गुजरात का आदमी काम क्या करता है, दिखाता है कि नहीं दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, एक एक करके सभी क्षेत्र। और गजब तो तब हो जाता है, सूरत के यहाँ कोई पुलिस की नौकरी करते करते पुलिस की नौकरी छोड़े और मंत्री बनके भी कितना सफल हो जाता, ये भी तो गुजरात सिखाता। कमाल कर दिया क्षमता योग्यता के माध्यम से। कौन सी दुनिया में जाना पड़ेगा, एक बार और जन्म लेना पड़ेगा गुजरात को समझने। हम चले यहाँ बड़े इन्वेस्टर समिट करना, साला हीरो हजारों साल से मध्य प्रदेश से निकल रहा पन्ना से, लेकिन हीरे की पालिश तो सूरत में ही होती है हमारे। आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पत्थर हमारा, लेकिन वो पत्थर ही है। अंगूठी में तो आप ही लगाते हो, और कोई लगाने वाला ही नहीं मिला। कपास हम उगा रहे हैं, रेडीमेड्स का पूरा सारा सामान कहां से जा रहा है, कहां आ रहा है, कपड़े कहां बन रहे हैं। जो कपास उगा रहे हैं वो कपड़े भी नहीं बनाना जानते, वो भी सूरत से साड़ी मंगा के पहन रहे हैं। ये फर्क है। लेकिन ये
क्षमता योग्यता के साथ व्यवस्थाओं के संचालन करने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार की पारदर्शिता व्यवस्थाओं के आधार पर विश्वास जीतना। और गुजरात पे हमें इसलिए भी गर्व है कि केवल गुजरात भारत का मस्तक का मोर मुकुट नहीं है, पूरे देश तो छोड़ो दुनिया का ये मोर मुकुट है। मुझे इस बात के आनंद है। गुजरात का आदमी जहां कहीं जाता है वो अपनी अलग पहचान बनाता है। जो वर्तमान संसाधन है उन संसाधनों में जैसे भारतीय लोगों का जीवन है, अपने को न्यूनतम रूप से कम खर्च में अपनी व्यवस्थाओं का बेहतर से बेहतर प्रबंधन करना और उस आधार पे अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना। और आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन और क्या क्या बात करते हैं, तो वो सारी बातों के लिए हमारे पास जो सीखने समझने की जगह है। मैं मान के चलता हूं कि शिवाजी का भी हिंदवी साम्राज्य बिना सूरत के उनका भी काम नहीं चला था, उनको भी सूरत आना पड़ा था। तो मैंने सूरत आने के लिए बहुत सारे कारण ढूंढ लिए हैं। सूरत आने के लिए सीरत चाहिए, सीरत से सूरत बनता है। और अभी आपने कहा ही है कि इंदौर के साथ सूरत खड़ा हो गया, राघवेंद्र सिंह जी ने कहा है। मैं मान के चलता हूं आज के दौर में सारी बातें हमारे बीच में आई है। व्यापार में जैसे ठाकर जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने वो सारे प्रबंधन किए जिसके माध्यम से व्यापार व्यवसाय में सुगमता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, और इस सब के बीच में एक निष्पक्षता के साथ हमारी वचनबद्धता होना चाहिए। हम कोई कमिटमेंट करें उन व्यवस्थाओं के लिए उसकी सरलीकृत एक व्यवस्था बनना चाहिए। माननीय मोदी जी ने डीबीटी सिखाई, गरीब आदमी का पैसा उस तक जाना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया कि उद्योगपति का पैसा भी सीधा उसके खाते में जाना चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए और समय सीमा में होना चाहिए। इसलिए हमने अपने 2 साल 1.5 साल ही हुआ सरकार बनाए, तो अभी तो यद्यपि सरकार तो 2, 3, 4 से चल रही है और बहुत बदलाव आए मध्य प्रदेश में। भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने काम अच्छे से किया है, लेकिन हमने और उसमें जुड़ाते हुए 2022-23 में 23 में हमारी सरकार बनी। लेकिन आज की स्थिति में यह हुआ है कि एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए इसी बीते मई तक का भी सारा बीजीएफ देने का काम, हमारे सारे इंसेंटिव देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसी पे कोई बकाया नहीं रखा है। जो कमिटमेंट किया वो हमको करना चाहिए, और केवल 2 साल का नहीं, आपका 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, कितना भी पुराना क्यों ना। और जमीन तो ऐसे देते जैसे राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप अभी मांगो तो अभी दे के जाएंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे। हमारे लिए जब काम ही करना है तो संकोच क्या है, बोलने के लिए थोड़ी है। और ये मुझे मालूम है कि बोलने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं, मैं किनके बीच बोल रहे हैं ये बोलने का ही महत्व जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। ये सभी जिस अपने अपने व्यवसाय में दक्ष लोग हैं, ये बोलने के पहले चेहरे से देख लेते कि पानी कितना जाने वाला है। अपने आप में वो चीजें बता देते हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये बात भी सही है, मेरे बारे में परिचय देने के साथ हमने अपने मंत्रियों का काम का बंटवारा किया, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वो 39% है, 39% है। हमारा कपास कहाँ देश में क्यों नहीं जाता, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी बड़ी संभावना है। सभी प्रकार की स्किल की हमारे बहुत अच्छी गुंजाइश है। ऐसे में जब इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, तो सभी इस सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए, टूरिज्म में भी देखो आप तो अकेला हमारे अपना एकमात्र राज्य है जहां सभी प्रकार की हमारी सभी वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। अब तो मोदी जी के कारण से 2022 में चीता देश की आजादी के साथ गायब हो गया था पूरे एशिया महाद्वीप से। वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, और एक जगह नहीं दो जगह दिखाई दे रहा है। ये मध्य प्रदेश का आज बदलता दौर है, बदलता समय है। भोपाल की सड़कों पे दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात में टाइगर घूमते हैं। इतना टाइगर हमारे यहाँ है। आप बताओ कौन सी हमारी प्रजातियां हैं जिनके आधार पर हमारी वन्य की शोभा नहीं
शोभायमान हो रही है। धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी सभी प्रकार की अनुकूलता बनी हुई। पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनुकूलता, हेल्थ का सेक्टर हो, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर हो, हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, सरकार आपकी मदद के साथ आपकी समृद्धि भी चाहेगी और ये चाहेंगे गुजरात में भी आप काम करो और मध्य प्रदेश भी आपको बुला रहा, दूसरा घर आपका मध्य प्रदेश बनने के लिए लालायित थे। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज छूट गई, मैं बता देता हूं, जरा छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, बैठिए आराम से। ये जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, गुजरात के निवेशकों को और सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में भी खोलने की घोषणा करता हूं, ताकि यहीं से हमारा काम चल जाए। जब व्यापार व्यवसाय करना तो हमारा ऑफिस अहमदाबाद में रहने से आपको और सुविधा होगी और हमारी ये मित्रता और प्रगाढ़ होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सर। और आज के इस कार्यक्रम में आप शुरुआत की और किस तरीके से मध्य प्रदेश में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और ज्यादा निवेश आ सके, उसको लेकर उद्योगपतियों से ये 1-to-1 चर्चा थी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात और मध्य प्रदेश मिलकर अब विकास की जो नई रफ्तार है वो देखेंगे, विकास को नई गति भी देंगे। विकास के जो नए कार्य हैं वो मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश में जहां मोहन सरकार है, तो वहीं आज वो गुजरात के सूरत में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर दौरा भी किया सूरत का, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की और संबोधित भी किया और अपने संबोधन में गुजरात से जो मध्य प्रदेश का रिश्ता है उसे भी काफी खास बताया। उस रिश्ते पर भी वो बातचीत करते हुए नजर आया कि किस तरीके से गुजरात के साथ मध्य प्रदेश का रिश्ता है और अब उद्योगपतियों से जो 1-to-1 चर्चा हुई है उसका कितना लाभ जो है मध्य प्रदेश वासियों को, साथ ही गुजरात वासियों को मिलने वाला है। ऐसे में आज का ये कार्यक्रम काफी खास, जो मंथन किया जा रहा है वो भी काफी खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर ये काफी खास कार्यक्रम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है और ऐसे में निवेश की बहार की बात भी उन्होंने कही है कि किस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में विकास होना है, विकास को एक नई गति देते हुए नजर आ रही हैं डॉक्टर मोहन यादव। उद्योगपतियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है। मध्य प्रदेश में निवेश पर ये मंथन हुआ है। और देखिए, निवेश पर मंथन का अहम कार्यक्रम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये सूरत दौरा था, काफी अहम माना जा रहा है। उद्योगपतियों से 1-to-1 उन्होंने चर्चा की है और ऐसे में काफी अहम दौरा गुजरात के सूरत से मध्य प्रदेश में निवेश पर मंथन का ये पूरा कार्यक्रम था। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सूरत दौरा काफी खास रहा है। उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा उन्होंने की है और ये 1-to-1 चर्चा भी काफी खास रही है। मध्य प्रदेश में निवेश पर मंथन का ये कार्यक्रम और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज पहुंचे हैं सूरत और सूरत में उन्होंने दौरा किया है। किस तरीके से मध्य प्रदेश में अब विकास को नई गति देनी है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत हो, उसको लेकर भी उद्योगपतियों से बातचीत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समिट के जरिए इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में हो पाए और जो उद्योगपति है वो उद्योग लगाएं, वो वहाँ पर आएँ और इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का ये पूरा कार्यक्रम था, जिसमें निवेश पर मंथन किया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। इस कार्यक्रम से ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सूरत दौरा काफी खास रहा है। उद्योगपतियों से 1-to-1 उन्होंने चर्चा की और ये 1-to-1 चर्चा काफी खास रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश पर यह मंथन का कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री, आपको बताएं। और
निवेश की दृष्टि से काफी अहम कार्यक्रम ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, और भी कई लोग इसमें शामिल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सूरत दौरा काफी खास रहा। उद्योगपतियों से उन्होंने बातचीत की है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में अधिक इन्वेस्टमेंट हो सके, उसको लेकर ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। और निवेश पर मंथन का ये पूरा कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास को नई रफ्तार देनी है, उसकी दृष्टि से ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। और एक के बाद एक सब संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। और एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार निवेश की बहार, एक तरह से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद एक एक कर सभी ने संबोधित किया। गुजरात किस तरीके से आगे बढ़े, मध्य प्रदेश गुजरात के साथ में किस तरीके से आगे बढ़े, ये काफ़ी अहम विषय रहे हैं जिस पर बातचीत हुई है। काफ़ी खास कार्यक्रम रहा है सूरत दौरा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा, निवेश पर मंथन की दृष्टि से काफ़ी खास कार्यक्रम। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाना है और इस इन्वेस्टमेंट से क्या कुछ लाभ होगा, चाहे वो शोभायमान हो रही है। धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी सभी प्रकार की अनुकूलता बनी हुई। पर्यटन के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनुकूलता, हेल्थ का सेक्टर हो, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर हो, हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, सरकार आपकी मदद के साथ आपकी समृद्धि भी चाहेगी। और ये चाहेंगे गुजरात में भी आप काम करो और मध्य प्रदेश भी आपको बुला रहा, दूसरा घर आपका मध्य प्रदेश बनने के लिए लालायित थे। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज छूट गई, मैं बता देता हूं, जरा छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, बैठिए बैठिए आराम से। ये जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, गुजरात के निवेशकों को और सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में भी खोलने की घोषणा करता हूं, ताकि यहीं से हमारा काम चल जाए। जब व्यापार व्यवसाय करना तो हमारा ऑफिस अहमदाबाद में रहने से आपको और सुविधा होगी और हमारी ये मित्रता और प्रगाढ़ होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सर। और आज के इस कार्यक्रम में आप आया, तब तक गिनती देखो देश की, तो सोचो लेकिन वो कहां टिके थे, करा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो करा कि जो था वो भी चला गया, तो देश का सोना गिरवे रख करके देश की इज्जत बचाने का काम पड़ा। फॉरेन करेंसी पूरी समाप्त हो गई। कितना खराब समय था। चंद्रशेखर या बीपी सिंह जी या नरसिम्हा राव जी तक हमारे अपने इस कुशलता के साथ सभी व्यवसाय को संभालते चलाते हुए देश की आजादी के साथ जो देश आजाद हुए उस पर निगाह डालो तो वो आज भी आदर्श है। इजराइल 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ से भी कम आबादी का, कोई 70 बताए, कोई 80 बताए, जितने लाख भगवान जाने, लेकिन अकेला सब पे भारी, ये देखता दुनिया, ये सबके सामने उदाहरण है। अकेला इजराइल ये उदाहरण है, उसी प्रकार से बाकी देश भी है। लेकिन हाँ, हमें गर्व है, अब मोदी जी हमारे साथ है तो हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं। वो 2 से तीसरा हमारा देश है, जो अपने देश के अंदर हजारों साल, लाखों साल से सोने की चिड़िया की हमारी पहचान थी। यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था तो हमेशा से बहुत समृद्ध रही। धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन धन के लिए धन के चौकीदार भी वैसा चाहिए, व्यवस्थाओं को संभालने वाला भी चाहिए, नहीं तो धन आफत बन जाता है। 1000 साल की गुलामी में लंबा समय इसी बात के लिए गया कि धन कमाने के लिए भारत के लोगों ने कभी अपनी क्षमता योग्यता में कमी नहीं रहने दी।
लेकिन देश की सीमाओं पे खड़ी सेनाओं की कमजोरी के कारण से देश के अंदर जो हालात बने कि सोमनाथ से शुरू हुई कहानी तो 47 तक आ गई, 1000 साल तक कितना खराब समय गया। मैं इसलिए गुजरात को धन्यवाद देता हूं कि पहले ज्योतिर्लिंग का भी झंडा सनातन संस्कृति के लिए लहराने का मौका कहीं दिया तो गुजरात की धरती से आया, ये हमारे सौभाग्य की बात। और ये गुजरात की देन है कि जब सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग का झंडा लहराया, गोपाल कृष्ण का मंदिर में आनंद आया, तो आज राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और महाकाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बदलता दौर है, कितना आनंद आया, क्या फर्क है दोनों में। राम जी का भी आनंद आया और महाकाल जी का भी आनंद आया। महाकाल का महालोक हो या आप तो बनारस की गलियां पहचान में नहीं आती, ये भी तो गुजरात की देन है। बाबा विश्वनाथ का धाम कितना आनंद में आया। मैं अभी गया था 2-4 दिन पहले ही, मेरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी के साथ ही हुई थी और ऐसे ही बातचीत निकली तो हमने कहा पहले कितनी फ्लाइट आती थी बनारस, उन्होंने कहा 18, अब कितनी आती है, बोले 98। ये बदलता है, 10 साल में कितना बदल जाता है। पूरा बनारस बदल गया, काशी बदल गया। और केवल काशी नहीं, गृह मंत्री क्या होते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखा या अमित शाह जी से सीखा कि गुजरात का आदमी काम क्या करता है, दिखाता कि नहीं दिखाता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, एक एक करके सभी क्षेत्र। और गजब तो तब हो जाता है, सूरत के यहाँ कोई पुलिस की नौकरी करते करते पुलिस की नौकरी छोड़